Jai Hind and welcome to another section. Now, in this session, we are going to be taking up the topic the use of modals for making requests and suggestions. So, this is a very interesting topic क्योंकि ये वो topic है जो हम रोज़मर्रा की अपनी बोलचाल में we uses extensively. और some of you must be wondering what is this word? This is modals और हम इसको कैसे use करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में आज हम आगे जानते हैं. चलिए. Now, सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स कम फर्स्ट सबसे पहले बिफोर वी मूव ऑन टू द निटिग्रिटीज ऑफ द क्लास इट इज बेटर कि हम अंडरस्टैंड कर लें कि ये मॉरल्स होते क्या हैं, इसका क्या रीज़न होता है, ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं हमारी ग्रामर में, हमारे स्पोकन में, किस लिए, व्हाट रोल डू दे प्ले. सो लेट्स सी. मॉरल्स कुछ भी नहीं होते, दे आर बेसिकली योर एक्सिलरी वर्ब्स. और ये क्या करते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं दे ऐड लॉट ऑफ मीनिंग टू द मेन वर्ब. सो जो मेन वर्ब होते हैं उसके साथ ये सहायक वर्ब होते हैं या ये क्या करते हैं, उसमें हमारे जो sentences में if we have to express about ability, possibility, permission, request, suggestions या necessity, तो उनके लिए हम यूज करते हैं ये सहायक क्रिया वाले शब्द होते हैं जो वर्ब यानी क्रिया को इन सब एस्पेक्ट्स में एक्सप्रेस करने के लिए बेटर बनाते हैं. चलिए अब देखते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है इनका करेक्ट यूज फॉर मेकिंग रिक्वेस्ट. सो रिक्वेस्ट क्या होती हैं एंड हाउ डू वी रिक्वेस्ट समवन. व्हेनेवर वी हैव टू रिक्वेस्ट समबडी आवर टोन हैज टू गो पोलाइट. Your request tone has to always be polite. Correct? If I am correct, give me a thumbs up. Yes. So, and what are the generally the modals that we use, the helping verbs that we are using, auxiliary verbs rather, what we are using are could, would, and may. So, these are the modals which we generally use when we are making a request. So, let's see a few examples of their correct usage. So, the first one, could you turn down the music, please? So, I am asking someone, I am making a request to someone. And what is my request? It is to turn down the music. So what is the sentence telling us? That the music is very loud. लेकिन अगर किसी ने बहुत ऊंचा म्यूजिक लगाया है, आप उसे कैसे रिक्वेस्ट करेंगे इन अ पोलाइट मैनर, ताकि दूसरा जो पार्टी है या जिससे आप बात कर रहे हैं दे डोंट फील ऑफेंडेड. दैट्स वेयर could comes to work for us. Could you turn down the music, please? So please लगा करके मैंने ये पूरे सेंटेंस फॉर्मेट को और भी ज़्यादा पोलाइट या डाउन की कर दिया है. Then, would you mind closing the door? Now here the auxiliary verb which is being used is would. तो मैं क्या यूज कर रही हूँ? would. तो ये क्या है? ये भी एक तरीका है एक रिक्वेस्ट को सामने रखने का. So in a polite manner, if I am making a request, I would say, would you please close the door? या would you mind closing the door? Right? So this is how we make up a request. Next, may I take this seat? May I. So may I also, or may for that matter, may I, may you. तो हम प्रोनाउन के साथ जब may लगा देते हैं, it means we are also seeking for an approval and we are making a request at the same time. May I take this seat? So these are the basic sentences and the types which are showing what? That we are trying to make a polite request about something to someone. जब भी किसी को polite request forward करनी है, then we have to be using these beautiful words in our sentences. Another example, could you help me carry these bags? Could you please help me carry these bags? This is how you politely put forward a request to somebody. Another example, would it be okay if I borrowed your car for the weekend?
सो अगर आप किसी से एक फेवर लेना चाहते हैं एंड यू आर नॉट श्योर कि हाँ बोलेंगे कि ना, तो हाउ वुड यू आस्क, आप उनसे रिक्वेस्ट ही करेंगे बिकॉज आप एक फेवर चाहते हैं. सो फॉर दैट अगेन word like would come for your rescue. Now अब आते हैं कैजुअल रिक्वेस्ट पे. इससे पहले वाली जो हमने रिक्वेस्ट करी थी वो बड़ी पोलाइट थी, है ना, ये प्रोफेशनल सेटअप्स में हम यूज़ कर सकते थे. अब हम आते हैं कैजुअल रिक्वेस्ट पे जो उतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है और ये लेस फॉर्मल एनवायरनमेंट में हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे घर पर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, विद योर नोन पीपल. यू कैन इंस्टेड ऑफ सेइंग कुड की जगह जो बहुत अच्छा और फॉर्मल और पॉलिश्ड वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है रादर, उसकी जगह आप उसको चेंज कर सकते हैं कैन के साथ. तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल. सो इफ वी आर यूजिंग कैन तो फिर देखिए किस तरह से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी कैजुअल रिक्वेस्ट की वो साउंड डेफिनेटली हमें प्रेजेंट करेंगे. कैन यू लेंड मी योर कार फॉर टुडे? कैन यू लेंड मी योर कार फॉर टुडे? ये आप डेफिनेटली उनसे बात कर रहे हैं जब आप कैन के साथ यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है कि आई कैन ईजिली नेगोशिएट विद दिस पर्सन. रिक्वेस्ट उतनी फॉर्मल नहीं है मेरी, या बहुत फॉर्मेलिटी नहीं है हम दोनों के बीच में. सो एक्सिलरी वर्ब कैन बी चेंज्ड हियर. देन कैन आई यूज योर फोन फॉर अ मिनट? ये बड़ा कैजुअल सा एक रिक्वेस्ट मैं आपको फॉरवर्ड कर रही हूँ, है ना. तो इसके लिए कुड की जगह मैं कैन का भी रिप्लेसमेंट कर सकती हूँ. Can you let me know when you are reaching home? या इसको अगर हम यूज करें would के साथ, would you let me know, तो वो बहुत ही फॉर्मल साउंड कर रहा है. सो कैजुअल जब रिक्वेस्ट में कर रही हूँ कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो मैं उसको कैन के साथ भी यूज कर सकती हूँ. देन कैन वी मीट टुमारो टू डिस्कस द प्रोजेक्ट? क्या हम कल मिल सकते हैं प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए? कैन वी मीट टुमारो. तो कैन क्या कर रहा है, थोड़ा असर्टिवनेस इसमें ज्यादा लेके आ रहा है, थोड़ा सा कैजुअल वाइब जो है ये आपके सेंटेंस को या रिक्वेस्ट को दे देता है. सो अब हम दोनों की पोलाइटनेस को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है. सो जब हमने कैजुअली यूज किया कैन को पोलाइट रिक्वेस्ट की जगह पर हमने कैन यूज किया एक कैजुअल रिक्वेस्ट के लिए. तो कैन यू हेल्प मी विद दिस? इट इज साउंडिंग लिटिल ईजी कि जो स्पीकर है वो एट ईज है किसके साथ, लिसनर के साथ. लेकिन अगर उसको पोलाइट वे में हैंडल कर रहा है और भी पॉलिश करके फॉर्मेलिटी की एक टोन बीच में डाल करके यूज कर रहा है तो वो पोलाइट रिक्वेस्ट कैसी हो जाएगी, वो कैन की जगह रिप्लेस होकर के वर्ड आ जाएगा कुड. Could you help me with this please? और डेफिनेटली प्लीज भी उसमें ऐड इन होना चाहिए बिकॉज आप एक बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट रख रहे हैं. ये बड़ी कैजुअल साउंड कर रही है, ये उतनी ही पोलाइट साउंड कर रही है. तो ये आप फॉर्मल सेटिंग्स में इजीली यूज कर सकते हैं. ये नॉट सो फॉर्मल एंड कैजुअल सेटिंग्स के लिए परफेक्ट रहती हैं. अब और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जहां पर हम इन दोनों को कंपेयर करके इनका डिफरेंस अच्छे से आज अंडरस्टैंड कर लेते हैं. चलिए अनदर एग्जांपल कैजुअल रिक्वेस्ट का ये हो सकता है, क्या हो सकता है, कैन यू हेल्प मी विद दिस, और इसको मैं दूसरी तरह से कर सकती हूँ, कुड यू प्लीज हेल्प मी विद दिस, राइट. सो नाउ वी मूव ऑन टू मॉडल्स फॉर मेकिंग सजेशंस. आप जब हम मॉडल्स यूज करते हैं सजेशंस देने के लिए, किसी को जब हमने कुछ सजेस्ट करना होता है तो भी हम बहुत सारे वर्ड्स को यूज करते हैं. दोज आर एक्सिलरी वर्ब्स और उनको क्या होते हैं, दे कैन बी फॉर मेकिंग अ जेंटल सजेशन. किसी को अच्छा सा एक बहुत पुशी हुए बिना जब हम सजेस्ट करें कुछ तो हम कुड और माइट ऐसे वर्ड्स को अपनी सेंटेंस स्ट्रिंगिंग के लिए या फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं. यू कुड ट्राई ईटिंग लेस शुगर फॉर बेटर हेल्थ. तो मेरा एक बड़ा पोलाइट सजेशन आपको आ रहा है, जेंटल सजेशन आपको आ रहा है. व्हाट इज द सजेशन, यू कुड क्या कर सकते हैं, ट्राई ईटिंग लेस शुगर फॉर बेटर health. So it's a very polite and a gentle suggestion which I am putting across to you. Then we might consider hiring a professional for the
job. Might. We might consider. Might. Again, it's a very polite or a gentle suggestion which is being put on the टेबल. तो जैसे आप मीटिंग में बैठे हैं और कुछ बात हो रही है, आपको एनिमेटर चाहिए अपने प्रोग्राम्स के लिए या वेब डिज़ाइन के लिए किसी को हायर करना है और आप डिस्कशंस में हैं, सो यू माइट से आई माइट नीड द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट डिज़ाइनर टू हैंडल माई वेबसाइट. सो माइट, इट इज़ a gentle suggestion which you are putting to your team. So इस तरह से for making gentle suggestions we use the auxiliary verbs like could and might. Then for making suggestions only now, if we are continuing, it would be with could and might. Some more examples. You could call her to check if she's okay. You could call her. ये मेरा suggestion है आपको कि you could call her. आप उसे call कर सकते हैं to check if she is all right. या वो ठीक है. To check if she is okay. So मैं आपको एक gentle suggestion दे रही हूँ. मैं किसी को बहुत push नहीं करेगी. नहीं, you must call her. You must call. नहीं, मैं किसी को पुश नहीं कर रही. मैं क्या कर रही हूँ? बहुत जेंटली एक सजेशन फॉरवर्ड कर रही हूँ. क्या सजेशन है मेरा? दैट you might or you could please call her to see if she is okay. Then, might it be a good idea to double check your report? It might be a good idea. Might it be a good idea to double check your report? Okay, अपनी रिपोर्ट को डबल चेक कर लीजिए. I think that is a good idea. तो इसको in a nice polite manner, if you are suggesting somebody something, so इस तरह से might and could you can be using for your conversations. आप जब हम किसी को बड़ा स्ट्रांगली एडवाइस करना चाहें तो हमने माइट और कुड देखा. बहुत जेंटली अगर हम किसी चीज़ की एडवाइस दे रहे हैं तो यूज़ करते हैं. पर some scenarios are like that. कुछ ऐसी situations होती हैं लाइफ में जहाँ पर हमें बहुत ज़ोरदार suggestions देना पड़ता है किसी को. हल्की फुल्की बात से बात नहीं बनती. Right? We have to be really strong in suggesting something. अपनी opinion बहुत strongly भी रखनी पड़ती है कई बार. तो जब when you have to put forward something suggestion very strongly, बहुत strongly आप कोई suggestion suggest कर रहे हैं, तो उस सिनेरियो में might and could को पीछे छोड़ करके you would replace the sentence words with words like should and shall. तो आपने shall use करना है and should बोलना है. Instead of saying I might not agree with this, or I might feel, you might feel that this is low cost. नहीं, उसकी ये माइट और ये पोलाइट जो सजेशंस हैं उनको पीछे छोड़ करके नाउ यू हैव टू पुट फॉरवर्ड द सेंटेंस और यू हैव टू मेक अ सजेशन और एन एडवाइस देन इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर. तो आपके पास आते हैं वर्ड्स लाइक शुड एंड शैल. तो ये क्या होगा? यू शुड अपोलोजाइज इफ यू मेड अ मिस्टेक. कोई इसके बारे में जेंटल नहीं होने की ज़रूरत. आई एम वेरी क्लियर कि आपने अगर गलती करी है तो आपको माफ़ी मांगनी है. तो इट्स व्हाट? इट्स एन एडवाइस, इट्स अ सजेशन विच आई वेरी स्ट्रांगली वांट टू पुट ऑन द टेबल. ओके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यू माइट अपोलोजाइज इफ यू मेड अ मिस्टेक, इट इज़ नॉट साउंडिंग नाइस कि कर लोगे तो ठीक है. नहीं, आप अपना जो एडवाइस या सजेशन है उसको स्ट्रांगली रख रहे हो, माइट को रिप्लेस कर रहे हो शुड से. Right? You should apologize. It's a statement which is showing that you are very assertive. आप जो हैं इस चीज़ को लेकर के बहुत clear हैं और बहुत strong intention से you are suggesting something. So it should and shall should come in play. Then, shall we start the meeting now? अगर आपसे कुछ ऐसे आप environment में बैठे हैं ऑफिस में या क्लास में जहाँ टीचर आ गई है या आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं और टाइम वेस्ट होने रहा है, यू फील कि अब चीज़ शुरू करनी चाहिए, तो वी माइट स्टार्ट द क्लास और कुड वी स्टार्ट द क्लास. इट इज़ वेरी माइल्ड है ना, ये सब नहीं जम रहा है. देन व्हाट विल कम एज अ रिप्लेसमेंट ऑक्सिलरी वर्ब? शैल. इट विल शो दैट विद assertiveness, with firmness, you are putting forward a suggestion, you are giving an advice. Shall we start? Should we start? This shows that you are in no mood of wasting the time
anymore. So you are being more assertive, you are being more firm when you are giving a suggestion or you are putting forward an advice. इसके we'll have little more examples to show कि हमारा जो word strength है when we are wanting to put this जो हम सोच रहे हैं उसको assertiveness या firmness से किसी को बताना हो तो कैसे करेंगे, उसका examples अभी हम strength कैसे differ करती है वो समझ लेते हैं. ठीक है, contrast जब हमें समझ आएगा तो we'll be able to understand it better and handle it better as well. So gentle जब हम हो रहे हैं, कोई भी जब suggestion हम दे रहे हैं, if our strength is gentle, हम बहुत pushy नहीं है, तो we will use word like might. It is very milder word. You might want to review this chapter before the test. You might have to revise this chapter before the test. ये एक मेरी gentle advice है कि कर लोगे तो आपके लिए अच्छा है ना. लेकिन अब सेम सेंटेंस को मैं बड़े स्ट्रांगली आपको अगर बोलूं कि नहीं नहीं आप मिस कर ही नहीं सकते, ये चैप्टर तो आपको करना ही है, तो माइट की जगह ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा शुड. तो देखते हैं, यू शुड रिव्यू दिस चैप्टर बिफोर द टेस्ट. आपको ये चैप्टर करना ही है, कोई इसमें दो राय है ही नहीं. आई एम वेरी क्लियर, यू हैव टू डू इट. यू शुड रिव्यू दिस चैप्टर बिफोर यू सिट फॉर द एग्जाम. तो इस तरह से मैंने जेंटल भी आपको बताया, माइल्ड कैसे हम जा रहे हैं, एंड जब हमने असर्टिवनेस दिखानी है तो तब कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं या मोरल्स हैं जो हमारे साथ चलते हैं हमारी कॉन्वर्सेशंस में. सो अब आते हैं कि भाई रिक्वेस्ट एंड सजेशंस के बीच में क्या डिफरेंस है. रिक्वेस्ट क्या होती है? रिक्वेस्ट होती है व्हेन यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए आप पूछ रहे हैं, है ना. यू आर वांटिंग अ फेवर, यू आर आस्किंग समवन फॉर समथिंग, दैट्स यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट. इट इज वेरी वेरी पोलाइट एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्ट. आप 1 to 1 ही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, है ना. आप वाया नहीं जाते हैं रिक्वेस्ट लेकर के, आप 1 to 1 रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं, पोलाइट होती है. और जो सजेशन होता है, सजेशन क्या होता है? सजेशन एक एडवाइस होती है जो आप किसी को बताते हैं, एंड उसमें क्या होता है, ये भी पोलाइट तो होता है सजेशन, लेकिन ये ऐसा होता है somebody might take the suggestion and it's up to the other person whether to take the suggestion or not, है ना. तो जो जब हम सजेस्ट करते हैं मतलब हम सुझाव दे रहे हैं किसी को, और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो मतलब हम किसी से अपील कर रहे हैं किसी चीज़ की. सो रिक्वेस्ट इज़ बेसिकली एन अपील एंड सजेशन इज़ एन एडवाइस जो हम किसी को पुट फॉरवर्ड करते हैं. और दोनों में ही अगर हम पोलाइट रहते हैं, चाहे हम रिक्वेस्ट करें या हम सजेस्ट करें किसी को कुछ, तो इट वर्क्स अ ग्रेट डील फॉर अस. हमारी कॉन्वर्सेशंस का जो इम्पैक्ट होता है वो डेफिनेटली बेटर होता है. जब मैं पोलाइट बोल रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप असर्टिव नहीं हो सकते. यू कैन स्टिल बी very clear, firm and assertive while practicing a tone which will show respect. तो आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, लेकिन आपने अपनी assertiveness दिखानी है by using the correct modals in terms of request and suggestions. चलिए, so the examples of request, let's see first. Can you turn off the lights? ये कैजुअल टाइप ऑफ रिक्वेस्ट है क्योंकि हम कैन यूज़ कर रहे हैं, है ना. और इसी में अगर मैं इसको थोड़ा पोलाइट रिक्वेस्ट बना दूं, कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट्स, राइट. देन इसको अगर मैं सजेशन बना दूं तो सजेशन में यू कुड टर्न ऑफ द लाइट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. ये मेरा एक सजेशन है कि बिजली बचाने के लिए आप लाइट्स को ऑफ कर सकते हैं. कुड है, ये भी एक पोलाइट ईजी रिक्वेस्ट सजेशन है ना. लेकिन इसको अगर मैं थोड़ा और असर्टिव बना दूं, थोड़ी और स्ट्रेंथ दे दूं, तो इसको मैं बोल सकती हूँ यू शुड टर्न ऑफ द लाइट्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. सो आई एम वेरी क्लियर कि अगर बिजली बचानी है तो लाइट्स, फालतू लाइट्स बंद कर दो, राइट. मूविंग ऑन, अब हम रिक्वेस्ट का दोबारा एक बार एक स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें कैजुअल भी समझते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट भी समझते हैं, फिर सजेशन में लेस स्ट्रेंथ भी समझते हैं, माइट के साथ माइल्ड रिक्वेस्ट सजेशन स्ट्रेंथ समझते हैं, उसके बाद शुड लगा करके उसे मोर असर्टिव भी बनाते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप विल गो. सो द फर्स्ट वन, कुड यू पास मी द केचअप. कुड यू पास मी द केचअप. केचअप क्या होती है?
जो टोमेटो सॉस होती है, दैट्स कॉल्ड केचप। तो प्लीज़ इस वर्ड को भी यूज़ करिए, हमेशा सॉस दे दो मत बोलो। कुड यू प्लीज गिव मी सम केचप? यस, ओके। सो कुड यू पास द केचप? तो ये एक बहुत ही कैजुअल रिक्वेस्ट थी जो इन लोगों के बीच में हो रही है, हु आर एट पार विद ईच अदर या हु आर एट ईज विद ईच अदर। ठीक है, इसी को अगर मैं एक नॉच हायर ले जाऊं और इसको पोलाइट रिक्वेस्ट की कैटेगरी में डालूं, सो ये थी कुड यू पास मी द केचप, तो ये हो जाएगी पोलाइट रिक्वेस्ट। सो कैन यू पास मी द केचप आपकी हो गई कैजुअल रिक्वेस्ट। कुड यू पास मी द केचप प्लीज, ये हो गई आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम सजेशंस में आते हैं, यहाँ पर जो हमने लिया है वो ऑक्सिलरी वर्ब शुड के साथ लिया है, तो ऑब्वियसली इट इज अ firm way of saying something. You should add more ketchup to improve the flavor. ये मेरा suggestion है कि you should add more ketchup to the plate or to the food to add more flavor. So it's a firm suggestion which is coming your way. इसी को अगर मैं tone down करूं, थोड़ी mild करूं, तो you might add more ketchup to improve the flavor. You might add more ketchup to improve the flavor. You might. So I am just suggesting, भाई तुम्हारे ऊपर है, करना चाहते तो कर लो, और शुड में है कि करोगे तो फ्लेवर पक्का इनहांस होगा। All right? So we move on. Now, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं where you want your friend to help you out with something, कुछ explain आपको करें, अब इसको एक real life scenario में देख लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे उसको रिक्वेस्ट करेंगे? यू कैन से कुड यू एक्सप्लेन दैट अगेन, है ना, और ये एक रिक्वेस्ट हो सकती है ना, एंड क्योंकि इसमें प्लीज नहीं है तो इट डज नॉट साउंड दैट फॉर्मल, और कैन यू एक्सप्लेन दैट टू मी अगेन, दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ रिक्वेस्टिंग, अ लेस कैजुअल वे। और अब इसमें अगर हम सजेशन में डालें कि ये सिचुएशन है और आपको अपने फ्रेंड की मदद की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे? तो अगर आपने अपने फ्रेंड को सजेस्ट करना है कि मेरी मदद कर दो, तो आप कैसे वो सजेशन को कैसे स्ट्रिंग अप करेंगे? वो ऐसे करेंगे, यू माइट ट्राई एक्सप्लेनिंग स्टेप बाय स्टेप फॉर क्लैरिटी, यू माइट ट्राई एक्सप्लेनिंग इट स्टेप बाय स्टेप फॉर क्लैरिटी। तुम कोशिश कर सकते हो मुझे समझाने की स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी के साथ। तो आप क्या कर रहे हो? आप एक सजेशन उसको दे रहे हो, क्या तुम कोशिश कर सकते हो? प्लीज कोशिश कर सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो मुझे स्टेप बाय स्टेप। सो नाउ वी आर कंबाइनिंग द पोलाइट एक्सप्रेशंस विद आवर morals to deal with various situations in our daily life. The first one is like how we are going to make a polite request. Okay, so sounding nice, polished and polite will always make it easy to make your way through. So let's have a few examples. Could you please send me the details by tonight? Here I am asking someone to kindly send me the details by tonight. I am telling what I want, but I am definitely telling them in a more polite manner. So here I am using could and please in my sentence formation. Next, would you mind if I left the meeting early, please? I am seeking a permission from someone that if it is okay for me to leave the meeting little early. Is it all right? They will not mind. So when you are asking something like that, you can definitely use a sentence structure like this to put forward a request, a very polite and a general request. Next, may I kindly ask you to lower your voice? So kindly is another word which we can use in place of please. May I please ask you to lower your voice? Or may I kindly ask you to lower your voice, please? Next, now we are moving on. After the request, we are taking up suggestions. Now let's see what's there in store for us. You might want to consider taking a break if you are feeling bored or stressed. If you are feeling bored, अगर आप बोर हो गए हैं या बहुत stressful feel कर रहे हैं, you might. It's a polite suggestion. You might
थिंक, आप सोच सकते हैं ब्रेक लेने की, है ना। मेरे एक जेंटल एडवाइस सजेशन आपको दे रही हूँ, है ना। नेक्स्ट, यू शुड प्रोबेबली चेक द वेदर बिफोर प्लानिंग द ट्रिप अप द माउंटेन्स। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, शुड का तो यूज हो रहा है लेकिन पोलाइट है, क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड है प्रोबेबली, ये प्रोबेबली, ये बताता है मे बी। So you should maybe check the weather before planning the trip up to the mountains. Next, could I suggest that we try a different approach solving this issue? So could I, तो मैं एक आपसे suggest कर रही हूँ आपको, कैसे, क्या मैं suggest कर सकती हूँ एक डिफरेंट अप्रोच। तो मैं एक बहुत पोलाइट सजेशन आपको दे रही हूँ, क्या मैं सजेस्ट कर पाऊँ, क्या मैं सजेस्ट करूँ एक डिफरेंट अप्रोच? तो इस तरह से यू कैन गो अहेड एंड मेक अ पोलाइट सजेशन फॉर द अदर पर्सन कि हाँ आप बताइए सजेस्ट करूँ कि ना करूँ। सो यू आर पुटिंग फॉरवर्ड अ सजेशन, इट इज अप टू देम वेदर दे चूज टू आस्क यू और दे सिंपली से नो वी डोंट हैव टाइम एंड दे लूज ऑन अ इम्पॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम योर साइड। So let's recap. So today what we did was requests and suggestions with the help of auxiliary verbs which are modals. So the polite ones would be, could you open the window please? And the more casual form for this would be, informal form would be, can you open the window? Next, another one, let's take another casual one. Can you hand me the notebook? Yeah, can you hand me the notebook? This is a casual one. अब इसको मैंने थोड़ा सा polite बनाना है. Could you please hand me the notebook? Same way. Now we move on to the suggestions. Suggestions अगर हम gently दे रहे हैं तो could को use कर सकते हैं. कैसे? You could try practicing meditation to reduce stress. And इसको अगर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग वे में किसी को सजेस्ट करना चाहूँ सेम स्टेटमेंट को, तो कैसे उस सजेशन को डालूंगी किसी के सामने? यू शुड ट्राई प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस. सिमिलरली another one, now here someone is making a very strong suggestion. What is the suggestion? You should speak to your manager about this issue. So it's a very strong suggestion. इसको मैं अगर थोड़ा gentle कर दूं, you might consider speaking or you might speak to your manager about this issue. Okay. Now we move on to the home assignments. I have planned a few things for you, like the 3 polite requests you can make in these situations. What can be? Asking for directions. How would you ask? How would you request someone to help you out? Then requesting for help with a project. It can be with a colleague you are interacting and you're asking for help, or with your classmates you are asking for help to make a project. Then the next one, borrowing a friend's cell phone. किसी से आप cell phone ले रहे हैं, how would you make 3 polite requests? So this is what you have to do. Then 3 suggestions for these 3 situations. There are 3 situations. उसके लिए you have to give me 3 suggestions. How will you frame those sentences? Helping a friend improve their health. How would you suggest that? Then recommending a good place to eat to somebody. How would you recommend a good place? कि ये अच्छी जगह है खाना खाने की. And advising a classmate on how to study effectively. तो ये आपका है home assignment. Before we say that we have reached the end of the class, of course we have some more words to add to our vocabulary. So the word on the screen today is permission. Permission क्या है? When someone is allowed to do something, that's called permission. तो इसका यूज करते हैं with modals, क्योंकि आज का टॉपिक ही यही था. May I ask for your permission to leave early? May I ask for your permission to leave early? Possibility. Possibility क्या बताता है? Chances of something to happen or take shape is called possibility. Let's use it with modals. There might be a possibility of winning if we try harder. So हमने possibility को might के साथ use करके एक sentence create किया. Next, advice. Advice is suggestion, guidance, or recommendation when we are giving to someone. So let's see
Advice के लिए, recommendation के लिए, we've already chosen the words and we've dealt with those words in the previous part of the lecture. He might give you good advice on improving your writing skills. He might give you good advice on improving your writing skills. So, we've used might, the modal, with the word advise, and we've made up a sentence. Then we move on to another few. Request. What is a request? Request, as I was explaining already, I had explained that in the earlier part, that it is when you are asking someone to help you out or for a favor, है ना? So it is a polite way of asking for a favor. So let's see. Could you please grant my request for an extension? Could you please accept my request for an extension? Next, another usage of the word request with the modal can. You can make a request for help if needed. Next, obligation. Obligation, what is obligation? It is a duty or a commitment. Okay, it is my obligation to help you. It's my duty to help you. So now let's see the usage of the word obligation with the word with a modal. Let's see. You must fulfill your obligation to complete the assignment on time. You should be use हो सकता है. Must, another modal. Then, you should respect our obligations to help others when possible. So, until we meet the next time, practice these, finish your home assignments so that when you attend the next lectures, you have more clarity and confidence